So students, let us see what is price elasticity of demand. ठीक है. Now let us see the formula of price elasticity of demand. First of all, price elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price of the goods. Now what is percentage change in the quantity demanded? Let us say, for example, initially the quantity of the product was Q1 and later on it changed to Q2. So Q1 is the initial quantity demanded, Q2 is the quantity demanded after changing the price. So you have Q1 and Q2. Similarly, initial price was P1 and the price which changed was P2. Now परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब क्या हो गया, Q1 का Q2 हो गया, मतलब Q2 माइनस Q1 है ना. जैसे फॉर एग्जांपल पहले अगर क्वांटिटी 100 थी और वो बढ़ के अगर 150 हो गई तो क्या हो गया चेंज, 150 माइनस 100 50 चेंज हो गया. तो Q2 माइनस Q1 करेक्ट, डिवाइडेड बाय व्हाट, इनिशियल प्राइस है ना. मतलब अगर हम कहते हैं कि 100 से 150 हो गया, अब हमको देखना कि परसेंटेज चेंज क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि 100 का 150 हो गया है, कहाँ से, 100 से हुआ है. सो वी हैव टू डिवाइड बाय Q1. तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय Q1, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1. दिस इज व्हाट, दिस इज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इनटू 100. ये तो है ही 100% से करते हैं ना, तो परसेंटेज है तो इनटू 100 होगा. सिमिलरली ये क्या होगा, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100. क्योंकि ये 100 कैंसिल हो जाएंगे तो वी विल हैव Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1. अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू, ये इन्वर्टेड में है तो ये ऊपर जाएगा, तो सबसे नीचे जो P1 है वो सबसे ऊपर आएगा, तो हमको P1 ऊपर मिलेगा और P2 माइनस P1 जो है वो नीचे मिलेंगे. Now this change from quantity Q2 to Q1 है ना, क्या हो गया, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू P1 अपॉन P2 माइनस P1. This change, let us call it as delta Q. That is the change in the quantity demanded, delta Q. And let us call this P2 minus P1 as delta P. So क्या हो गया, Q2 माइनस Q1 delta Q by Q1 इंटू P1 by delta P. हमने क्या किया, हमने डेल्टा Q इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1. हमने Q2 माइनस Q1 को डेल्टा Q लिखा हुआ है और P2 माइनस P1 को हमने डेल्टा P लिखा हुआ है. ये जानना बहुत जरूरी है. यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा Q बाय Q1 इंटू P1 बाय डेल्टा P. इसको ही अगर हम इसको इधर लाएं, उसको उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P1 बाय Q1. डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P1 बाय Q1. ठीक है. नाउ दिस डेल्टा Q बाय डेल्टा P इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व है ना. अब आपको दिख रहा है कि डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P1 बाय Q1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द price elasticity of demand. Is it clear? Now let us see what are the different values of elasticity of demand are there. Let us see the different values of elasticity of demand. Now to understand the values of elasticity of demand, we have to first of all take some example है ना. For example, petrol. In case of petrol, what will happen if the change in price is there, still people will continue to buy petrol.
मतलब क्या हो गया, द डिमांड इज इन इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ example like petrol, where this is the price P on the y axis and this is the quantity demanded QD on the x axis, and whenever the price changes, price was initially 60 rupees, then it became to 80 rupees, then it becomes say 100 rupees. Price is changing, but a common man who is buying petrol, say 10 liters in a month, continue to buy 10 liters in a month, even at 60, even at 80, and even at 100. So what happens? He continues to buy at the same rate. So his elasticity of demand, you can see, there is no impact of, this is the demand curve, what he is getting. There is no impact of price on the quantity demanded because it's a necessity good. So what you find here, you find that the elasticity is zero. You find that the elasticity is zero. When it happens in the cases of necessity goods like medicines or petrol. In that case it happens like this, that the elasticity is zero. Exactly opposite can happen. Hypothetically, let us consider that there is some product which has got very high demand in the market and the people are very sensitive about the product's price. अब क्या होगा, उस समय ये प्राइस P और एक क्वांटिटी QD है. नाउ समझो कि उसकी कीमत पहले 80 रुपीज़ थी उस प्रोडक्ट की और उसकी डिमांड जो थी वो 100 थी. सो पॉइंट इज हियर. Now by changing even a small change, 80 rupees and 10 paise or 80 rupees and 5 paise, there is a very large change in the demand. Say for example 500. Now what is happening? There is, as good as there is no change, as good as there is a no change in the price, but there is a large change in the quantity. Hypothetically, ऐसा आइडियली नहीं होता है, हमको ये कंडीशन कंसिडर करनी पड़ती है. अब इस केस में क्या हो गया, थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज, एकदम माइन्यूट 0.001% भी अगर है तो क्वांटिटी में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1000 टाइम्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है. सो विल गेट अ फ्लैट लाइन हियर एंड इन दैट केस वी कॉल दिस एज अ हाईली इलास्टिक प्रोडक्ट जिसकी इलास्टिसिटी क्या है, इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट का साइन क्या होता है ना, इट्स 8 स्लीपिंग 8 ऐसे दिखता है, इट्स इनफाइनाइट. इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट. सो वी कैन से दैट इन दिस केस इट इज परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर. सो दिस प्राइस इलास्टिसिटी इज परफेक्टली इलास्टिक. यहाँ पे क्या हो गया, इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक. यहाँ पे क्या हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक. ये तो समझ में आ गए. नेसेसिटी गुड्स परफेक्टली इन इलास्टिक इन नेचर. सम फैशन गुड्स में बी परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर. ठीक है. एक की क्या हो गई, एक की इलास्टिसिटी कितनी है, 0 है. एक की कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई. अब तीसरा उदाहरण देखते हैं. ये भी एक आइडियल सिचुएशन है. अभी आइडियल सिचुएशन में क्या होता है, यूज डिफरेंट पेन फॉर दिस वन टू रिड्यूस द कंफ्यूजन. फिर से प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे हमने लिखा है. अब समझो कि 1 रुपये से प्राइस बढ़ने के कारण क्वांटिटी 1 से बढ़ती है, 2 रुपये प्राइस बढ़ने के कारण क्वांटिटी 2 से बढ़ती है, 3 रुपये के कारण 3 से बढ़ती है. मतलब 3 रुपये प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी 3 से बढ़ रही है. 1 रुपये से प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी 1 से बढ़ रही है. ऐसा अगर होता है ना, एग्जैक्टली 1 अगर इलास्टिसिटी आती है, एग्जैक्टली 1 इलास्टिसिटी, तो वो कैसे दिखेगा, इट विल लुक लाइक दिस. 45 डिग्री एंगल. 45 डिग्री एंगल, वहाँ पर हम बोलेंगे कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, जिसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी. जिसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी. ठीक है. एग्जैक्टली
₹1 से प्राइस कम करने के कारण ₹1 से क्वांटिटी बढ़ रही है, ₹2 से प्राइस कम करने के कारण 2 से क्वांटिटी बढ़ रही है। ऐसा अगर होता है तो उसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी। नाउ यू विल फाइंड दैट नन ऑफ दिस कंडीशंस आर आइडियल इन नेचर। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई प्रोडक्ट इतना नेसेसिटी है कि जिसका प्राइस 60 से 100 होगा तो उसकी क्वांटिटी कम होगी ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एग्जैक्टली नहीं हो सकता। तो ये आइडियल सिचुएशन है। ये भी सिचुएशन कभी भी प्रैक्टिकली हो नहीं सकता, ये भी आइडियल सिचुएशन है। और यूनिटरी इलास्टिसिटी भी आइडियल सिचुएशन है। तीनों भी सिचुएशन आइडियल है। फिर भी हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारी बाउंड्रीज है। जितना भी स्टडी है इलास्टिसिटी का, ये 3 बाउंड्रीज के बीच में होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दोस बाउंड्रीज। सो फॉर दैट आई विल यूज द डिफरेंट पेन हियर। This is the 4th diagram I am drawing here. Price P and this is the quantity demanded. Now we know the 3 boundaries. The first boundary is this. The second boundary is this. And the third boundary is this. है ना? एक बाउंड्री है जो बाउंड्री इंफिनिटी की है, एक बाउंड्री 0 की है और एक बाउंड्री 1 की है। 3 बाउंड्रीज हमको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ये 1 से इंफिनिटी के बीच में दिख रही है आपको, 1 से इंफिनिटी के बीच में, मतलब वो डिमांड यहाँ पे है, मतलब इट इज कंपैरेटिवली फ्लैट इन नेचर। सो वी कैन से दैट द डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक इन नेचर। हम क्या कहेंगे इसको? द डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक इन नेचर। कब? when the value of E, when the E is between 1 and infinity, when the value of E is between 1 and infinity, हम कहेंगे कि ये जो डिमांड है ये रिलेटिवली इलास्टिक है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, अगर ये वैल्यू 1 और 0 के बीच में है, यहाँ पे आता है, मतलब there is a steep slope, है ना, यहाँ पे जैसे फ्लैट स्लोप है, यहाँ पे क्या है? स्टीप स्लोप है। इसका मतलब ये डिमांड की वैल्यू जो है ये 0 और 1 के बीच में आती है। हम कहेंगे दिस इज रिलेटिवली इनइलास्टिक इन नेचर। रिलेटिवली इनइलास्टिक इन नेचर। नाउ these 2 conditions are practically available in the market. The entire products in the world are divided into 2 parts. They are either having relatively elastic demand or they are having relatively inelastic demand. किसी प्रोडक्ट की डिमांड कभी यूनिटरी नहीं होती है, कभी भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है, कभी भी परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं होती है। वो या तो रिलेटिवली इलास्टिक होती है या फिर वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। इसका मतलब क्या हुआ? There are 5 types of price elasticity of demand depending on the value of the elasticity. First is perfectly elastic, second is perfectly inelastic, third is unitary, fourth is relatively elastic, and the fifth is relatively inelastic in nature. That's all for the price elasticity of demand. Thank you.